Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Segunda Sulakshna and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see standard 11th economics chapter number 2 fundamental concepts and terminologies of economics. So as you all know, we have already seen few parts of this chapter. So today we are here to see the part 3 of the chapter. So before starting the today's current portion, let us have a short summarization of the previous portion that we have seen in a very detailed manner. So previously we have seen about the goods and services and the types of goods in a very detailed manner. So let us have what is the meaning of the goods and services. Goods means any commodity which is having the physical existence, which can be seen up, touched up and felt by anyone is considered as goods. For example, हम जो भी चीज़ को टच कर सकते, छू सकते, देख सकते. For example, we can say this duster. We can touch it, we can feel it, we can show it, we can see it. So any tangible good is considered as the goods, which means any commodity which is physically existence is considered as goods. Now the portion is services. What is services? Services means the portion means a commodity which cannot be seen, which is intangible, जिसे देखा नहीं जा सकता है, but फिर भी for fulfilling the needs of the particular individual, when any circumstances of the commodity is used which cannot be seen but still it fulfills the satisfaction of any customer, it is considered as services. For example, the medical consultancy. Second, the education. So these things are considered as services. So the difference between the goods and services, if you see, the services can be cardinally cannot be measured up, but the goods can be cardinally measured up. So goods को हम cardinally measure कर सकते, जबकि services को हम measure नहीं कर सकते. Rather than that, goods जो है कभी भी कहीं पे भी दिख सकता है, and जो है services it cannot be seen up. So in this manner, if you are seeing the difference between in goods and services, one is tangibly visible, one is intangible. One is cardinally measurable, second one is not measurable. Such things are considered in the goods and services. Then we have seen the types of goods. So in that first we have seen the physical good and the intangible good. So types of goods की बात करें तो various types of goods देखे जाते, जिसमें से कुछ types जो है बहुत ही importantly देखे जाते, जिनमें से first है tangible goods and intangible goods. Tangible goods की अगर हम बात करते, जो goods को हम देख सकते, छू सकते, in the same manner cloth, डस्टर, वाटर बॉटल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ों को जो है टेंजेबल गुड्स में माना जाता है. इनटेंजेबल गुड्स कहीं ना कहीं सर्विस को एसोसिएट करता है, जैसे कि मेडिकल कंसल्टेंसी, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस. सो ये सारे चीज़ें, इवन जो इंटरनेट कनेक्शन, वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन यूज इट एंड फील इट. सो सच थिंग्स आर कंसिडर्ड एज द सर्विसेज, विच मीन्स द intangible goods. After that we have seen the non-economic good and economic good. What is non-economic good? Non-economic goods की अगर हम बात करते हैं, जो goods पे मॉनेटरी एक्सचेंज वैल्यू नहीं देखा जाता है, उसे non-economic good माना जाता है, जैसे कि सनलाइट, एयर, ये सारी चीज़ों को non-economic goods के तरीके से देखा जाता है. देन व्हाट इज इकोनॉमिक गुड? इकोनॉमिक गुड मतलब जो भी चीज़ों के लिए मॉनेटरी एक्सचेंज वैल्यू दिया जाता है, पैसे दे के जो हम चीज़ों को खरीदते हैं, यानी प्राइस पे करते हैं, एक्सचेंज वैल्यू जिसके लिए हम पे करते हैं, उसे मॉनेटरी गुड यानी इकोनॉमिक गुड्स माना जाता है. जैसे कपड़े ले लो, मोबाइल ले लो, रेदर देन दैट डस्टर. इवन डस्टर की जो एग्जांपल देखा, अगर इसे खरीदने जाना हो तो हमें 30 रुपीज़ की पैसे की ज़रूरत है, इसका एक एक्सचेंज वैल्यू है. इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट का एक्सचेंज वैल्यू देखा जाएगा, उसे कहीं ना कहीं हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक गुड्स बोलते हैं. देन वी हैव सीन द ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स. सो व्हाट इज ड्यूरेबल गुड एंड व्हाट इज नॉन ड्यूरेबल गुड? ड्यूरेबल गुड्स की अगर हम बात करते हैं, जिसकी ड्यूरेबिलिटी यानी जो लॉन्ग टर्म तक चल सकता है, वैसे गुड्स को ड्यूरेबल गुड्स बोला जाता है, जिसे रिपीटेड मोड पे हम यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल क्लोथ, वंस वी विल बाय इट, बट ये सालों साल तक चल सकता है और रिपीटेड मोड पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं. तो ऐसे गुड्स को जो है ड्यूरेबल गुड्स बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, मोबाइल फ़ोन, क्लोथ, शूज़, दिस थिंग्स आर कंसिडर्ड एज ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल या पेरिशेबल गुड्स की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी वैलिडिटी यानी इसकी लाइफ टाइम बहुत ही कम होता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होता है. फॉर एग्जांपल मिल्क,
फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यू नो दैट हम फ्रिज पे रखें तो 2 या 3 दिन रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। तो इन शॉर्ट अगर हम बोले तो कुछ गुड्स जो बहुत कम टाइम तक रह सकते हैं, फिर ख़राब हो जाए, उसे हमें फेंकना पड़े, हम उसको यूज़ ना कर पाए, उसे पेरिशेबल गुड्स बोला जाता है। इवन पेरिशेबल गुड्स को वन टाइम ही यूज़ किया जाता है। जैसे फ्रूट्स अगर आप लाओ, आपने ऐसा सोचो 2 मैंगोज यू हैव परचेज, आप उसको खा जाओ तो दोबारा उसको आप खा नहीं सकते, वंस ओनली यू कैन कंज्यूम इट। सो कहीं ना कहीं पेरिशेबल गुड्स जो है वंस ओनली you can consume, जबकि ड्यूरेबल गुड्स फॉर अ लॉन्ग टर्म you can consume. After that, if you are seeing private good and the public good, so private good में हमने देखा कि private good में exclusivity और competitiveness देखा जाता है, rather than private good जो है एक particular individual से ownership के थ्रू लिया जाता है, उसके बाद अगर वो उसे खरीद लेता है तो उसकी पर्टिकुलर ओनरशिप उस पर होता है, उसी का हक उस प्रोडक्ट पे होता है, बाकी सारे लोग उससे दूर हो जाते हैं, यानी एक्सक्लूड हो जाते हैं, हट जाते हैं, और किसी का हक उस प्रोडक्ट पे नहीं होता है। इसीलिए एक्सक्लूसिविटी इस तरीके से देखा जाता है। देन वी हैव सीन द पब्लिक गुड। पब्लिक गुड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबका हक होता है, कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल का हक वहाँ पे देखा जाता है, कलेक्टिव नेचर पे देखा जाता है। जैसे पब्लिक गार्डन, अगर आप कोई पब्लिक गार्डन में जाते हो जो गवर्नमेंट ओन करता है तो वहाँ पे कोई भी जा सकता है, आ सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। वही प्राइवेट गार्डन की अगर हम बात करते हैं, आपके खुद के घर पे आपने अपना एक गार्डन रखा तो आप दूसरों को वहाँ आने से रोक सकते हो, तो यानी एक्सक्लूसिविटी हो सकता है। तो इसका यहाँ पे हमने देखा प्राइवेट गुड का मतलब शॉर्ट पे जो पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल का हक हो और उसी का हक हो, दूसरे उसको यूज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ प्राइवेट गुड। जबकि पब्लिक गुड मतलब जो सब यूज़ कर सकते हैं और सब उसको यूज़ भी कर सकते हैं, कलेक्टिवली कोई किसी को मना नहीं कर सकता है, उसे पब्लिक गुड माना जाता है। और पब्लिक गुड कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का होता है या कलेक्टिव ग्रुप का देखा जाता है। तो यहाँ तक का टॉपिक हमने डिटेल में देखा। आज हम फर्दर टॉपिक को बहुत डिटेल में देखेंगे। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इन द फर्दर वीडियो. Students, now let us move on with the today's portion in a very detailed manner. So today we are going to see the consumer good and the producer good in a very detailed manner. So I am going to read it out, listen it out carefully, then we will discuss about it in a very detailed portion. Goods can satisfy human wants directly or indirectly. When a consumer consumes a good and this good is capable of satisfying a particular want directly, then it is called a consumer good. These goods have passed the final stage of production. For example, cooked food. They satisfied human wants directly. सो यहाँ पे गुड्स जो भी डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड कर सकता है या इनडायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को तुरंत सेटिस्फाई कर सकता है, उसे कहीं ना कहीं यानी एक कंज्यूमर जब भी एक गुड को कंज्यूम करता है और वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो वैसे गुड्स को कंज्यूमर गुड्स बोला जाता है। जैसे आप मैकडी में जाते हो या पिज़्ज़ा हब जाते हो तो पिज़्ज़ा लेते हो, डायरेक्ट खा के सेटिस्फेक्शन ले लेते हो, तो वैसे गुड्स को कंज्यूमेबल गुड्स माना जाता है। यानी इनका फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन हो गया है और ये डायरेक्ट हम उसको खा सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे कुकड फूड दिया है। उस तरीके से इंसान जब भी कोई भी चीज़ को खरीदे और डायरेक्ट उसको यूज़ करके अपना सेटिस्फेक्शन कंप्लीट कर पाए, उसे कंज्यूमेबल गुड्स माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट ऑल्सो यू कैन टेक अप, उसका फाइनल प्रोडक्शन हो गया, चॉकलेट की पैकेट आप लेते हो, डायरेक्ट खाते हो और सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। सो ऐसे प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं कंज्यूमेबल गुड्स माना जाता है। सो नाउ व्हाट इज प्रोड्यूसर्स गुड, लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. When a good is used at the intermediate stage of production of a final good, when it is purchased by a producer to produce the final good, when it is not directly consumed by the consumer, but this good helps in the production of a final goods, then such a good is called a producer good. For example, cotton used to make cloth, machine used in the factories to produce garments, a tractor which facilitates in producing the food grains, a utensil used to cook food, etc. They satisfied human wants through the final goods and not directly. तो यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेज में जो चीज़ों को देखा जाता है, जो फाइनल प्रोडक्ट में नहीं बना है और प्रोड्यूसर उसको खरीदता है और फिर उसको फाइनल गुड बनाता है, तो वैसे गुड्स को कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स गुड माना जाता है। यानी कंज्यूमर डायरेक्टली इसको खरीद के खुद का सेटिस्फेक्शन कंप्लीट नहीं कर सकता, स्टिल उसको कहीं ना कहीं जो एक फाइनल गुड में चेंज आउट करना है तो उसे प्रोड्यूसर गुड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉटन बन गया, एग्रीकल्चर से कॉटन रेडी हो गया, कॉटन को डायरेक्ट हम लेके यूज़ कर सकते हैं, नहीं, कॉटन में से कपड़ा पहले बनेगा। तो कॉटन में से कपड़ा बनाने के लिए
प्रोड्यूसर जो खरीदता है उसे कहीं ना कहीं जो है प्रोड्यूसर गुड माना जाता है। मशीन्स जो फैक्ट्री में गारमेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रैक्टर, यू नो दैट हमें फूड ग्रेन्स बनाने के लिए ट्रैक्टर की ज़रूरत है, तो ट्रैक्टर कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोड्यूसर गुड में चला जाता है, यानी वो एक प्रोड्यूसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कुक फूड, हम खाना बना के खा लेंगे तो डायरेक्ट बना हुआ खाना हमारे लिए कंज्यूमर गुड है, बट खाना बनाने के लिए जो बर्तन चाहिए वो प्रोड्यूसर गुड पे आता है। इस तरीके से ह्यूमन की जो ज़रूरत है उसको फुलफिल करने के लिए उसकी फाइनल गुड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं, बट डायरेक्टली फाइनल गुड बनाने के लिए जो गुड्स यूज़ किया जाता है उसे कहीं ना कहीं जो है प्रोड्यूसर्स गुड्स बोला जाता है। यहाँ पे ख़त्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज का लास्ट पॉइंट, यानी टाइप्स ऑफ गुड, कंज्यूमर गुड एंड प्रोड्यूसर गुड। सो नाउ लेट अस सी द वेल्थ एंड वेलफेयर। वेल्थ क्या है और वेलफेयर क्या है? The concept of wealth and welfare frequently appears in economic discussion and very important in economy. Hence must be clearly understood at this stage. तो concept जो है wealth and welfare का बार बार economic discussion में देखा जाता है, इसीलिए ये बहुत important है कि economics में हमें welfare और wealth के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। So इस stage में हमें कहीं ना कहीं ये समझाया जा रहा है। तो meaning and characteristic of wealth. So meaning and characteristic of wealth यहाँ दिया गया है. Let us see that in a very detailed manner. Since the time when Adam gave the definition of economic in the context of wealth, the subject of wealth become extremely important in economics. Meaning, in the understanding of Alfred Marshall's idea, wealth is something which is useful, scarce, capable of getting exchanged and can be owned by someone. So characteristic, the following characteristic can be derived from the wealth. सो सबसे पहले जब हमने एडम स्मिथ का डेफिनेशन देखा इकोनॉमिक में, उसने उनकी बुक कॉन्स्टेंट ऑफ वेल्थ में इकोनॉमिक के बारे में बात किया। वेल्थ यानी एक ऐसा सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट यानी इम्पॉर्टेंट वे में देखा जाता है। मीनिंग की अगर हम बात करें तो अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से हमने ये बात तो समझ ली, वेल्थ यानी बहुत यूजफुल चीज़ होता है, बहुत कम मिलता है, कैपेबल ऑफ एक्सचेंज, आपके पास अगर कोई वेल्थ है तो आप कभी भी उसको एक्सचेंज कर सकते हो, रेदर देन दैट वो पर्टिकुलरली कोई एक इंसान के द्वारा ओन किया जाता है, यानी वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के हक में होता है, उसे वेल्थ बोला जाता है। सो वेल्थ का मतलब इवन वी कैन से दैट हाउस इज अ वेल्थ, प्रॉपर्टी इज अ वेल्थ। वेल्थ का मतलब जो ऑलरेडी कम हो। आजकल वेल्थ में क्या देखा जाता है, तो घर और ज़मीन, क्योंकि ज़मीन बहुत कम होता जा रहा है तो उसका स्कैरसिटी है, तो स्कैरसिटी में यानी सोना, दिस इज ऑल्सो वेल्थ। सो जो चीज़ स्कैर्स में हो यानी कम हो और कभी भी आप सोने को किसी के पास बेचने जाओ तो वो ले लेगा, तो कभी भी एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो, यूजफुल हो, मुश्किल के टाइम पे यूजफुल हो जाए और वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के थ्रू जो है ओन किया जाता हो, उसे वेल्थ बोला जाता है। सो नाउ कैरेक्टरिस्टिक वी आर गोइंग टू सी, लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। नंबर 1, it should possess the characteristic of usefulness. It must be useful in satisfying human wants or need. Therefore, goods which are useful in satisfying need of human being are wealth. For example, house, vehicle, precious jewelry, etc. तो सबसे पहले उसका कैसा कैरेक्टर होना चाहिए, तो वो यूज़फुल होना चाहिए। वेल्थ का मतलब जो यूज़फुल चीज़ें हैं उसे वेल्थ बोला जाता है। इन शॉर्ट हमारे वांट्स, हमारे नीड्स को फुलफिल करने तक का उसका यूज़फुलनेस होना चाहिए। इन शॉर्ट वी कैन से दैट गुड्स जो भी हमारे नीड्स को सेटिस्फाइड करता है उसे कहीं ना कहीं वेल्थ बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें रहने के लिए एक जगह चाहिए तो घर हमें वो फुलफिल करता है, हमें हर जगह जाने आने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो वेहिकल हमें वो फुलफिल करता है, हमें हमारा स्टेटस दिखाने के लिए प्रीशियस ज्वेलरीज की ज़रूरत पड़ती है, क्यों, कभी मुश्किल आए तो उसको बेच के भी हम पैसा कर पाए। सो इस तरीके से घर, वेहिकल, प्रीशियस ज्वेलरी, ये सारी चीज़ों को हम वेल्थ बोल सकते हैं। इट शुड बी स्कैर्स, this commodity which are scarce in supply in relation to their demand and possess exchange value beside being useful are called wealth. Goods which are useful but not scarce and do not have exchange value like sunlight and air are not called wealth in economy. तो commodity जो कम है, scarce यानी जो scarcity में देखी जाती है, बहुत कम होता है जिसका सप्लाई, उसका कहीं ना कहीं डिमांड होता है और उसका एक्सचेंज वैल्यू होता है। जैसे सोना ले लो,
ठीक है। सोने की भाव जैसे बढ़ती जा रही है, पहले 5,000 में मिला, फिर 10,000 में, आज उसका 55, 40, 50 ऐसा रेट है। तो 1 ग्राम इफ़ यू आर गोइंग टू सी, तो वो एक 4,000 5,000 में आता है। सो इन दिस पोर्शन इफ़ यू आर सीइंग, कहीं ना कहीं जो हमारा वेल्थ है वो क्या होता है, जिसकी स्कैरसिटी हो, जिसकी एक्सचेंज वैल्यू हाई देखी जाती हो, जो यूजफुल हो, वैसी चीज़ों को वेल्थ बोला जाता है। बट जिसका एक्सचेंज वैल्यू ना हो और जो बहुत ज़्यादा ही मिले, जिसकी स्कैरसिटी ना हो, जैसे सनलाइट और एयर, ये सारी चीज़ें ले लो, ये बहुत हमें ज़रूरी है, बट इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत अनलिमिटेड वे में मिलता है। तो ऐसी चीज़ों को इकोनॉमिक में वेल्थ माना नहीं जाता है। तो वेल्थ का मतलब स्कैरसिटी होना चाहिए और उसका एक्सचेंज वैल्यू अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट इट शुड हैव फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस। Wealth should have existence which can be exchanged. The ability to understand the aptitude of human being, their physical abilities, etc. are the initiate ability and the assets of human being and are usually not exchanged. In today's world, however, the intellectual abilities of human beings, like the ability to create new ideas, are exchanged for money in the market. And hence the intellectual ability to create novel ideas and good is called wealth, as the ability of scientists to think are quality and not wealth, but the novel idea created by the scientist is wealth. सो वेल्थ जो है फिजिकली होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस, या तो फिजिकल होना चाहिए या तो इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, यानी कि हम उसको एक्सचेंज कर पाए, हम उसको दे पाए। वेल्थ का एक ऐसा एग्जिस्टेंस होना चाहिए जिससे हम उसको एक्सचेंज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, घर है, हमें घर अब नहीं चाहिए, हमें बेच के पैसे चाहिए, तो हम उसको बेच सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी और को वो बेच सकते हैं और हम उसके बदले पैसे ले सकते हैं। सो इस तरीके का एबिलिटी होना चाहिए। बट आजकल अगर हम बात करते, हमें एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, हम लोगों को समझ गए, इंसान की एप्टीट्यूड को समझ गए, उनकी एबिलिटी को समझ गए, फिजिकल एबिलिटीज़ को समझ गए, इसीलिए कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग को भी, उसकी एबिलिटीज़ को भी एक एसेट्स की तरह देखा जाता है। यूजुअली लोगों का जो स्किल है वो एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, बट आज के वर्ल्ड में हम कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कोई नया आइडिया लिया है, उस आइडिया से हम लाखों कमा सकते हैं, ऐसे हमें लगता है, और वो आइडिया काम भी करता है, हमने ये प्रूव कर दिया, तो हम उस आइडिया को कहीं ना कहीं मार्केट में एज ए इनोवेटिव आइडिया बेच सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को भी कहीं ना कहीं हम बेच सकते हैं। तो नोबल आइडियाज़ और गुड्स को भी हम इस तरीके से एज ए वेल्थ बना सकते हैं। सो इन दिस सेंस, अगर हम साइंटिस्ट की बात करते हैं, वो जिस तरीके से सोचते हैं वो उनकी क्वालिटी है, बट उनकी सोच से उन्होंने जो चीज़ डेवलप्ड किया है, उस डेवलपमेंट को वो वेल्थ की तरह कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है, जैसे कि अभी कॉपीराइट, पैटर्न, ये सब बनता है, आपने कुछ नया रिसर्च किया और वो सक्सेसफुल हुआ, तो वो जो चीज़ रिसर्च हुआ उससे आप पैसा कमा सकते हो, यानी वो आपका वेल्थ हो जाता है। इन दिस सेंस कहीं ना कहीं उसका फिजिकल या इंटेलेक्चुअल एक्सिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट इट इज constitutions goods which are capable of exchange. Wealth is an economic concept and therefore must be capable of getting exchange. Wealth is meant to satisfy present as well as future consumption and other needs, and therefore must be capable of exchange. A house purchased today satisfies the present need of housing and can be sold in the future to buy other goods. Precious metals, land, etc. also possess the same कैरेक्टरिस्टिक। वेल्थ का मतलब इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पे वो कभी भी एक्सचेंज होने के कैपेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, वो आज भी हमारी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए और फ्यूचर में भी हमारे ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। इसीलिए उसको कैसा होना चाहिए, तो एक्सचेंज होने के लायक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आज हमने एक घर खरीदा, हम काफ़ी साल उस पर रहे, फ्यूचर में हमें ऐसा लगता है अब ये घर नहीं चाहिए, हमें इससे बड़ा घर चाहिए, तो हम उस घर को ऐसे ही छोड़ने की ज़रूरत नहीं, हम उसे बेच सकते, बेच के कुछ पैसे खड़ा कर सकते, उसी पैसे से दूसरा घर खरीद सकते। तो इस तरीके से फ्यूचर में अगर हमें दूसरा गुड लेना हो तो उस गुड के लिए ये गुड को हम एक्सचेंज या बेच के ले पाए, वैसे गुड्स को ही वेल्थ बोला जाता है। जैसे प्रीशियस मेटल, गोल्ड अगर आज आपने खरीद के रखा है, फ्यूचर में अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो आप गोल्ड को बेच के भी दूसरी चीज़ें खरीद सकते हो, इवन लैंड। तो ये सारी चीज़ों की तरह इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, कभी भी इसको बेच के, इवन कभी भी इसको बेच के नई चीज़ें लिया जाए, उस चीज़ को कहीं ना कहीं वेल्थ बोला जाता है। तो वेल्थ का कैसा पोर्शन होना चाहिए, कैपेबल ऑफ एक्सचेंज भी होना चाहिए। नेक्स्ट इट इज़ ड्यूरेबिलिटी।
Wealth must possess durability. Durable goods can be exchanged for future exchange and for satisfying future needs and therefore become wealth. Goods which perish after single use cannot be used for future transaction and therefore are not wealth. For example, land, house, precious jewelry are durable goods and hence can be considered wealth along with their other characteristics. Shares are also wealth. सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वेल्थ को ड्यूरेबिलिटी के साथ होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा अभी तक वेल्थ का जितना एग्जांपल दिखा तो हमने देखा कि सोना, चांदी, मकान, घर, गाड़ी जो लंबे टाइम तक चल सकता है। क्यों? ड्यूरेबल गुड्स ही कहीं ना कहीं जो है फ्यूचर में भी एक्सचेंज होने के लायक हो सकता है। फ्यूचर में हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमारी चीज़ों को वेल्थी यानी कि ड्यूरेबल होना नेसेसरी है। गुड्स जैसे कि पेरिशेबल, अगर आपने फ्रूट्स खरीदा तो आप उसको फ्यूचर में बेच सकते हो, नो, सिंगल यूज के बाद वो खत्म हो जाएगा, आप उसको फ्यूचर में कोई ट्रांजैक्शन उसका नहीं कर सकते। तो वैसे गुड्स को वेल्थ नहीं बोला जाता। वेल्थ वैसे चीज़ों को ही बोला जाता है जो फ्यूचर में भी आप उसको रीयूज कर पाओ, जैसे लैंड, हाउस, प्रीशियस ज्वेलरी, ये सब ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। और इनका एज ए वेल्थ इनका एक अदर कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे कि शेयर को ले लो, शेयर भी वेल्थ है। शेयर मार्केट पे अगर अपने शेयर को खरीदा, आज आप इनकम जनरेट कर रहे हो, कल उठ के आपको शेयर नहीं चाहिए तो आप उसको बेच के पैसा भी कर सकते हो। तो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि आज और फ्यूचर दोनों टाइम पे कहीं ना कहीं जो है वो हमारे काम आना चाहिए। फूड ग्रेन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय अ फार्मर आर नॉट वेल्थ इफ दे पेरिश इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. Likewise, labor of laborer is not called a wealth. However, if food grains are stored in the cold storage for a long time and their market value increase in future, then those becomes wealth. Hence, new technology can redefine wealth. So, food grain, अगर कोई एक फार्मर है, खेती बाड़ी करता है और अनाज जैसे गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ों का प्रोडक्शन करता है और तुम्हें पता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने 6 महीने में ख़राब हो जाएंगे, सो उसके अंदर अगर वो बेचता है तो वो उसको कहीं ना कहीं उसके लिए वो वेल्थ नहीं है। बट अगर वही फार्मर उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखता है और उसको 1 साल के बाद भी बेचने लायक रखता है तो वो उसके लिए वेल्थ बन सकता है। सो कहीं ना कहीं नए टेक्नोलॉजी में वेल्थ का रेडेफिनेशन देखा जा सकता है। बट लेबर जैसे कि एक काम करने वाला है, उसका लेबर यानी वो जो काम करता है वो कहीं ना कहीं वो उसका वेल्थ माना नहीं जाता है। तो इन दिस सेंस वेल्थ का मतलब जो फ्यूचर में भी एक्सचेंज वैल्यू रखता हो, जो फ्यूचर में भी अपना काम आए, जिसे हम बेच सकते हो, उसका एक्सचेंज वैल्यू हो, ड्यूरेबिलिटी हो, तो वैसी चीज़ों को कहीं ना कहीं वेल्थ बोला जाता है। सो हियर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेल्थ इज बीइंग गेटेड ओवर. सो टुडेज टॉपिक विल बी अप टिल दिस. सो आई होप you all have understood the topic in a very well manner. So now let us move on with a short summarization of the topic that we have seen today. I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have seen about the consumable goods and the producer goods. After that we have seen the wealth and welfare. In that we have seen about the wealth, its meaning, its definition, and after that we have seen the characteristic of the wealth in a very detailed manner. So now let us have a short summarization or a revision of the topic that we have seen today. So what is consumer good and producer good? Consumer goods का मतलब ऐसे goods जो डायरेक्टली कंज्यूमर लेके कंज्यूम करके अपना सेटिस्फेक्शन फुलफिल कर सकता है, यानी जो गुड्स ऑलरेडी फाइनल गुड हो वैसे गुड्स को कंज्यूमर गुड बोला जाता है। जैसे कि रेस्टोरेंट में जाओ, खाना बना हुआ आपको तैयार मिलता है, आप जो खाना खा लेते हो और सेटिस्फाइड हो जाते हो उसे कंज्यूमेबल गुड्स माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर वी हैव सेड. आफ्टर दैट वी हैव सीन प्रोड्यूसर्स गुड. व्हाट इज प्रोड्यूसर्स गुड? प्रोड्यूसर्स गुड्स की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे गुड्स जो मार्केट में इंटरमीडिएट यानी वर्क इन प्रोग्रेस में मिलता है। फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर को लाके आप कुछ कर सकते हो नहीं, ट्रैक्टर को लाके आपको एग्रीकल्चर में फिनिश गुड बनाने के लिए उसको यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे गुड्स जो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स बनाने के लिए हेल्प आउट करते हो उसे कहीं ना कहीं हम जो है प्रोड्यूसर्स गुड्स बोलते हैं। जैसे कि बर्तन लाके आप अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हो, आप बर्तन लाके उसके अंदर खाना बना के खुद को सेटिस्फाइड कर सकते हो, तो वैसे गुड्स को कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स गुड्स
बोला जाता है। आफ्टर दैट वी हैव सीन वेल्थ एंड वेलफेयर। वेल्थ एंड वेलफेयर की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में वेल्थ एंड वेलफेयर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता हुआ वर्ड माना जाता है, इसीलिए इकोनॉमिक में हमें इसके बारे में क्लियरली जानना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसके अंदर हमने वेल्थ के बारे में डिटेयली देखा। व्हाट इज़ वेल्थ? वेल्थ की अगर हम बात करते हैं, वेल्थ का मतलब ऐसी चीज़, इवन एडम स्मिथ की जो कॉन्टेस्ट है वेल्थ में, उन्होंने ये बोला कि इकोनॉमिक्स के अंदर सब्जेक्ट जो है वेल्थ का वो बहुत ही इम्पोर्टेंटली देखा जाता है। हर एक इंसान इकोनॉमिक एक्टिविटी वेल्थ के लिए ही करता है। सो अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से, उनकी डेफिनेशन के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं वेल्थ का मतलब जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो, जिसकी स्कैर्स हो, जिसकी डिमांड हो, रेदर देन दैट जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत लंबे टाइम तक हो और जिसकी एक्सचेंज वैल्यू कभी भी कम ना हो और ज़्यादा होता जाए, उसे कहीं ना कहीं वेल्थ बोला जाता है। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं जो चीज़ें ज़्यादा यूज़फुल हो और फ्यूचर में कभी भी एक्सचेंज होने के लिए रेडी हो जाए और जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, उसे कहीं ना कहीं हम वेल्थ बोल सकते हैं। तो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें डिटेल में दिया गया। 5 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने वेल्थ की 5 कैरेक्टरिस्टिक बहुत डिटेल में देखा। फर्स्ट वन था यूज़फुलनेस। वेल्थ जो है हमेशा यूज़फुल माना जाता है। हमारी यूज़ को यानी हमारी नीड्स और वांट्स को कंप्लीट करने के लिए ही वेल्थ कहीं ना कहीं होता है। फॉर एग्जांपल हमने घर, गाड़ी, ये सारी चीज़ें देखा। जैसे हमें कहीं बाहर जाना आना है तो हमारी नीड्स यानी वांट्स, कहीं भी जाने आने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, तो कार लेना पड़ता है। यू नो दैट कार हमारी कहीं ना कहीं नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करता है और उसकी यूज़फुलनेस हमें बहुत ही ज़्यादा होता है। उसकी डिमांड ज़्यादा होता है बट सप्लाई बहुत कम देखा जाता है। अगर उसका सप्लाई ज़्यादा देखा जाए तो उसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं होता है, तो वो कहीं वेल्थ माना नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल हमने सनलाइट और एयर देखा, इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है बट अबेंडेंट है, सप्लाई की वजह से डिमांड इसकी बहुत कम है, कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू जो है एक्सचेंज वैल्यू ना होने की वजह से इसको वेल्थ बोला नहीं जा सकता। सो सेम द सेकेंड टॉपिक, एक्सचेंज वैल्यू उसका होना चाहिए, फर्दर नीड के लिए उसका एक्सचेंज वैल्यू होना चाहिए। तो वेल्थी प्रोडक्ट्स वही होते हैं, वेल्थ उसे ही बोला जा सकता है जिसे फ्यूचर में हम एक्सचेंज कर सकते हैं। जिसे फ्यूचर में हम एक्सचेंज ना कर पाए वैसे चीज़ों को हम कभी भी वेल्थ बोल नहीं सकते। सेकेंड, इट इज़ ड्यूरेबल। थर्ड की बात करें तो ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी यानी लंबे टाइम तक चलना चाहिए। जैसे कि पेरिशेबल गुड्स की अगर हम बात करते हैं, मेल की, वन टाइम कंज्यूमर होता है, हमने अगर पैसे लगा के उसे खरीदा और यूज़ किया, उसके बाद अगर हमें उसे वापस बेचना तो कोई होगा नहीं, वो वहीं ख़त्म हो जाता है, दोबारा उसको हम बेच के रिपीटली हम खुद यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए उसे कहीं ना कहीं वेल्थ बोला नहीं जा सकता। बट वही लैंड, वेविकल, प्रीशियस मेटल, ये सारी चीज़ों की बात करें, हमने खरीदा, हमने काफ़ी टाइम तक यूज़ किया, फिर अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसको बेचना है, तो वो हम उसको बेच भी सकते हैं, उसके बदले दूसरे गुड्स भी खरीद सकते हैं। इस तरीके का ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए। वेल्थ की डेफिनेशन में कहीं ना कहीं आजकल अगर हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को भी कहीं ना कहीं, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को भी इंक्लूड किया जाता है। जैसे एक साइंटिस्ट का जो दिमाग है, वो जो सोचता है वो उसकी एबिलिटी है, बट उसके ऊपर से वो जो आइडिया क्रिएट करता है, उस आइडिया के ऊपर से वो कैसे चीज़ों को, नए चीज़ों को इन्वेंट करता है और उस चीज़ों के ऊपर वो आइडिया को बेच के वो पैसा कर सकता है, वो कहीं ना कहीं एक वेल्थ माना जाता है। इस तरीके से पर्टिकुलरली हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेल्थ के ऊपर डिटेल में देखा। सो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टुडेज क्वेश्चन इन अ वेरी वेल मैनर. Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.